नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी में। सो गाइस, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। So guys, in this video we are going to see introduction to DDSS, that is design and drawing of steel structure. So guys, in DDSS there are generally two methods which we are going to see. फर्स्ट वन इज़ LSM लिमिट स्टेट मेथड, जो कि आज के ज़माने में यूज़ होता है, और WSM होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो पुराने ज़माने में या मतलब जो कि पब्लिक पब्लिक जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वहाँ पे WSM यूज़ किया जाता है। सो गाइस, LSM और WSM में क्या फ़र्क है, हम इसके बारे में सब जानेंगे इस वीडियो में, सो बने रहे। सो लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ WSM, दैट इज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सो गाइज, ये काफ़ी सिंपल मेथड होता है अगर हम लोग कंपेयर करेंगे LSM से, और ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी इट इज स्टिल यूज्ड इन सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे आज भी ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। So let's see limitations of WSM. It assumes that concrete is elastic, which is not true, as concrete behaves inelasticity. It uses factor of safety for stresses only and not for load. It does not account for shrinkage or creep. And most important point कि WSM ये uneconomical method है। सो गाइस, आइए देखते हैं व्हाट इज़ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन मेथड, दैट इज़ LRFD. So limit state is a condition of the structure beyond which it is no longer fulfill the relevant design criteria. A structure is designed by LSM is proportional to structure all action which are likely to occur during its design life and also fit for use. So guys, LSM में दो टाइप्स आते हैं, दैट इज़ कोलैप्स और स्ट्रेंथ, एंड सेकेंड इज सर्विसेबिलिटी। सो कोलैप्स स्ट्रेंथ में 4 पॉइंट्स हैं, उसमें फ्लेक्चर, शियर, कंप्रेशन, टॉर्शन। नेक्स्ट आता है सर्विसेबिलिटी, जिसमें कि फर्स्ट आता है वाइब्रेशन, सेकेंड क्रैकिंग, थर्ड आता है डिफ्लेक्शन। सो चलिए गाइस, फर्स्ट देखते हैं कोलैप्स एंड स्ट्रेंथ। Limit state of collapse and strength. It deals with strength and stability of structure subjected to maximum design loads out of the possible combination of several types of load. Therefore, limit state of design, therefore, limit state of strength ensure neither any part, neither full structure should collapse or become unstable under any combination of expected load. It includes loss of stability of structure, loss of equilibrium of structure, failure by excessive deformation, fracture due to fatigue, fifth, brittle fracture. So guys, let's see limit state of serviceability. So guys, limit state of serviceability states it deal with deflection, cracking and vibration under service load. Durability under working environment. This limit state are associated with functioning and performance of structure or its component under service load. It causes discomfort to occupant or effect of appearance of structure. It includes deformation and deflection which may affect apparent of structure. Second, vibration is structure which causes discomfort to people. Third, repairable damage due to fatigue. Fifth, coercion and durability. And fifth is fire resistance. So guys, let's see what is the distinguish between LSM and WSM, which means हम लोग अभी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड को और वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है दिस मेथड इज़ प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड। LSM ये प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड है और WSM ये
इलास्टिक डिज़ाइन मेथड है। सो गाइस समझ गए आप, LSM एक प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड है और WSM एक इलास्टिक डिज़ाइन मेथड है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक और probabilistic. WSM, this method has deterministic approach. Third point है, very important point, LSM is very economical method and WSM is uneconomical method. Fourth point is the stress in material is allowed to go beyond the yield limit and enter into the plastic zone to reach ultimate strain. तो गाइस यही फ़र्क है LSM और WSM में कि LSM में जो यील्ड लिमिट के बियॉन्ड जा मतलब मटेरियल को कंसीडर करते हैं और प्लास्टिक जोन तक उसका हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते हैं। यहाँ पे WSM में द डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज़ कैलकुलेटेड सच दैट द मटेरियल इज़ लिमिटेड टू इट्स यील्ड लिमिट तक ही। अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा है या फिर उसके बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा व्हाट इज़ यील्ड लिमिट, व्हाट इज़ प्लास्टिक जोन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मटेरियल डू नॉट फॉलो हुक्स लॉ। ठीक है, और WSM में मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ सेज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली लीनियरली बोथ आर लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज्ड इन LSM। सो गाइज ये एक एग्जांपल है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। LSM में स्टील को लेते हैं 1.15, कंक्रीट में 1.5, और WSM में हम लोग स्टील का लेते हैं 1.5 और कंक्रीट में लेते हैं 3। तो यही से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, दिस मेथड फॉलोज लीनियर स्ट्रेन रिलेशनशिप बट नॉट लीनियर स्ट्रेस रिलेशनशिप। नेक्स्ट इसका जो WSM में दिस मेथड फॉलोज लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, हमने अभी देख लिया what is the distinguish between LSM and WSM. Let's see what are the types of steel structure. So guys, types of steel structure होते हैं, रूफ ट्रस हो गया, टावर हो गया, ब्रिज हो गया, जिसमें ब्रिज में भी टाइप है सस्पेंशन ब्रिज, स्टील स्ट्रक्चर, वाटर टैंक, ग्रैंट्री गर्डर, बिल्ट अप मेंबर, कॉलम्स, ये अपने यूट्यूब चैनल में कवर करने वाले हैं कॉलम्स। नेक्स्ट आता है चिमनी, बिल्डिंग फ्रेम्स। सो गाइस ये सारे हुए स्टील स्ट्रक्चर। सो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं स्टील स्ट्रक्चर के। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो गाइस स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850 kg/m³। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 486 J/kg केल्विन। सो गाइस इसका पॉइजन्स रेशियो होता है 0.3 का, और यील्ड स्ट्रेंथ होती है फॉर एग्जांपल Fe की 550, फॉर स्ट्रेंथ Fe 500 मीन्स 500 Nm/mm²। सो गाइस तो चलिए गाइस आइए देखते एक एक करके हर एक सेक्शन के नाम्स। सो फर्स्ट है आई सेक्शन। सो गाइस आई सेक्शन में ISIB, उसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड लीनियर बीम्स। सो ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम्स, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, इन ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। सो गाइस नेक्स्ट सेक्शन है वो है चैनल सेक्शन। सो गाइस चैनल सेक्शन में भी 4 टाइप है। ISJC वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISMC ऑब्वियसली इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। तो गाइस एंगल सेक्शन में ISA ही कहते हैं। ISA में 2 टाइप होते हैं, एक होता है इक्वल अनइक्वल, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। इस बारे में हम लोग जानेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट होता है T सेक्शन, उसमें भी 5 टाइप्स होते हैं। ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। नेक्स्ट होता है ISHT इंडियन स्टैंडर्ड हैवी प्लांच्ड टी बार, ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट लेग्ड टी बार। नेक्स्ट होता है ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, ISST इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल लेग टी बार।
सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया टू DDS, दैट इज़ डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है और हमें IS 800 के बारे में जानना होगा। तो गाइज़, हम लोग DDSS के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और जुड़े रहिए। ठीक है गाइज़, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेट होगा और मैं ऐसे ही वीडियोस बना सकूँगा। होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।